السلام علیکم ویورز، پاکستان کے پولیٹیکل، سوشل اینڈ اکنامیکل ایشوز کے حوالے سے پروگرام اسائنمنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمران ثناءاللہ۔ آج کے پروگرام میں شامل ہیں ڈینگی وائرس کب اور کہاں سے، کشمیر میں گمنام قبریں، نام نہاد جمہوریہ کے چہرے سے ایک اور نقاب ہٹ گیا، کراچی بدامنی سپریم کورٹ کی اب تک کی سماعت، اور اس کے علاوہ آپ کو دکھائیں گے کچھ مزید اسائنمنٹس۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا پروگرام۔ مچھر دیکھنے میں معمولی، لیکن اس کے کاٹنے سے پیدا ہونے والا مرض جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ مچھر کے کاٹنے سے پیدا ہونے والا ملیریا پہلے ہی انسانوں میں اپنی دہشت پھیلائے ہوا تھا کہ زنانہ مچھر کے کاٹنے سے پھیلنے والا ایک اور مرض انسانوں کے لیے جان لیوا ثابت ہو رہا ہے۔ ڈینگی وائرس زنانہ مچھر سے پھیلتا ہے۔ پاکستان میں پچھلے چند سالوں سے اس مرض کی شدت میں ہر سال اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق کینیڈا سے درآمد کیے گئے پرانے ٹائروں سے امپورٹ ہونے والا یہ مچھر دنیا کے بہت سے ممالک میں اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ ڈینگی وائرس پر دیکھتے ہیں ریاض جاوید کی اسائنمنٹ۔ ڈینگی کی ابتدا 1775 میں ایشیا، افریقہ اور شمالی امریکہ سے ہوئی اور اس میں مبتلا ہونے والے افراد 7 سے 10 روز کے دوران ہی چل بسے۔ جب صورتحال زیادہ خوفناک ہوئی تو لوگوں نے نقل مکانی اور طبی ماہرین نے مرض کے اسباب کا پتہ چلانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ بالآخر یہ سامنے آیا کہ یہ مرض ایک خاص قسم کے مچھر کے کاٹنے سے پھیلتا ہے۔ 1889 میں اس بیماری کو ڈینگو کا نام دے دیا گیا۔ ڈینگو اسپینش زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے گندی روح کی بیماری۔ ڈینگو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ڈینگی میں تبدیل ہو گیا۔ 1950 میں یہ بیماری جنوب مشرقی ایشیا کے ممالک میں ایک وبا کی صورت میں نمودار ہوئی اور اس سے ہزاروں افراد جن میں بچے بھی شامل تھے لقمہ اجل بن گئے۔ 1990 کے آخر تک دنیا بھر میں 40 لاکھ افراد ڈینگی کا شکار ہو چکے تھے۔ 2002 میں برازیل کے جنوب مشرقی علاقوں میں 10 لاکھ سے زائد افراد اس بیماری کا نشانہ بنے، جبکہ سنگاپور میں ہر سال 4 سے 5 ہزار افراد اس وائرس کا شکار بنتے ہیں۔ 2003 میں ڈینگی کے تدارک کے لیے ویکسین کی تیاری پر کام شروع ہوا اور تھائی لینڈ کے سائنسدانوں نے ایک ویکسین تیار کی جو ابھی تک تجرباتی مراحل میں ہے، جبکہ سوئٹزرلینڈ میں بھی ایسی ہی کوششیں جاری ہیں۔ حال ہی میں یہ بیماری ایک مرتبہ پھر وبا کی صورت میں دنیا کے مختلف ممالک میں پھیل رہی ہے اور ڈومینیکن ریپبلک، کیوبا، جنوب مشرقی ایشیا، فلپائن، تھائی لینڈ، انڈونیشیا، ملائیشیا، سری لنکا، بھارت اور آسٹریلیا کے بعد اب پاکستان بھی اس کا بڑا نشانہ ہے۔ ریاض جاوید، وقت نیوز، لاہور۔ صاف پانی پر پلنے والا مچھر پچھلے چند سالوں سے ایک خوفناک وائرس میں بدل چکا ہے۔ ڈینگی وائرس کے خاتمے کے لیے پنجاب حکومت وزیر اعلیٰ کے خصوصی احکامات کے بعد اس وقت میدان میں اتر چکی ہے، لیکن اسے دیر آئے درست آئے تو نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اگر وقت پر سپرے کر دیا جاتا تو قیمتی انسانی جانیں ضائع ہونے سے بچ جاتی۔ لاہور میں ڈینگی وائرس کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ محکمہ صحت کی نااہلی کا واضح ثبوت ہے۔ ڈینگی وائرس کے خطرناک اثرات کی وجہ سے پارکوں میں عوام کی تعداد میں نمایاں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں طاہر جعفری کی اسائنمنٹ۔ ڈینگی وائرس اس وقت صوبہ پنجاب میں زوروں پر ہے، جس کے باعث متعدد ہلاکتیں بھی دیکھنے میں آئی ہیں۔ حکومت پنجاب اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے قبل از وقت انتظامات نہ ہونے کے باعث عوام شدید تشویش میں مبتلا ہے۔ ڈینگی نے تو عوام سے ان کی واحد تفریح بھی چھین لی ہے۔ وہی پارکس جہاں عوام کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہوا کرتا تھا، آج ڈینگی وائرس کے باعث ویران ہو چکے ہیں۔ شہری کس حد تک ڈینگی وائرس کے خوف میں مبتلا ہے، اس کا اندازہ تفریحی پارکوں میں سناٹوں اور ویرانیوں کے ڈیروں سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ ڈینگی وائرس کا خاتمہ کرنے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں تاکہ پارکوں کی رونق ایک بار پھر بحال ہو سکے۔ پہلے ہم لوگ فیملی کے ساتھ ضرور آتے تھے، اب آپ دیکھ رہے ہو کہ پارک میں وہ پوزیشن نہیں ہے لوگوں کی، لوگ ڈرے ہوئے ڈینگی سے۔ چیف منسٹر صاحب یہ کھل کر جو یہ جیلی سپرے وغیرہ ہو رہا ہے اس کا کوئی نوٹس لیں اور صحیح طور پر جو سپرے ہے جو اصلی حقیقی طور پر جو ڈینگی کو شکست دے سکے اور عوام کو پھر باہر پارکوں میں لا سکے۔ آج کل ڈینگی وائرس کتنا پھیلا ہوا ہے تو اسی ڈر سے لوگ نہیں آتے پارکس وغیرہ میں، لیکن اگر لوگ پارکس میں بھی نہ آئیں اور یہاں پہ ایک ہی تو تفریح ہے پاکستان میں۔ کئی دنوں تو میں دیکھ رہا کہ اتنے واک کرنے والے بندے بڑے گھٹ آ رہے ہیں اور یہ چاہیے کہ ہن انہوں نے گورنمنٹ اس چیز نو ٹھیک کرنا۔ تفریحی پارکوں میں سیر کی غرض سے آنے والے افراد کی تعداد ڈینگی وائرس کے زور پکڑنے کے بعد بہت کم ہو گئی ہے، تاہم طبی ماہرین کا ماننا ہے کہ الگ صبح اور مغرب کے وقت کے علاوہ پارکس میں تفریح کی غرض سے جانے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر آپ واک کریں، باہر جائیں ارلی مارننگ اور فجر کے ٹائم پہ یا مغرب کے ٹائم پہ تو تب اٹ از ریلیٹیولی مور ڈینجرس، ادروائز کوئی اتنا پرابلم نہیں ہے، تو کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کو ڈینگی ایکوائر کرنا ہے تو آپ گھر میں بیٹھ کے بھی ایکوائر کر سکتے ہیں، اپنے ٹیرس پہ، اپنے لان پہ یا پھر اپنا اسٹریٹ پہ۔ عوام کا کہنا ہے کہ حکومت پنجاب اور ضلعی انتظامیہ اس وبا کے خاتمے کے لیے محض ڈینگے مارنے کی بجائے مل بیٹھ کر عملی طور پر ڈینگی مارے۔ کیمرامین محمد رحمان کے ساتھ طاہر جعفری، وقت نیوز، لاہور۔
مقبوضہ کشمیر گزشتہ 64 سال سے ہندو بنیے کے ظلم و ستم کا شکار ہے۔ مقبوضہ کشمیر سے شاید ہی کبھی خیر کی خبر آئی ہو۔ بھارتی فوج کے قتل و غارت، تشدد اور دیگر انسانیت سوز واقعات آئے روز سننے میں آتے ہیں۔ آزادی کے لیے ترستے اور بھارت کے ظلم و ستم کے شکار کشمیریوں کے لیے ہر روز کسی قیامت سے کم نہیں ہوتا، لیکن ہندو بنیے کے منہ کو لگا انسانی خون کا چسکا کم ہونے میں نہیں آ رہا۔ ہزاروں کشمیری مسلمانوں کا قاتل بھارت آج بھی دنیا میں سب سے بڑی جمہوریہ ہونے کا دعوے دار ہے، جبکہ ہر نیا دن اس کے مکروہ چہرے سے پردہ ہٹا رہا ہے۔ بھارت کی بربریت کا شکار ہونے والے کشمیری مسلمانوں کی گمنام قبروں کے منظر عام پر آنے کے حوالے سے دیکھتے ہیں سردار حمید کی اسائنمنٹ۔ آزادی کے حصول کے لیے کشمیریوں نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ بھارت نے اقوام متحدہ میں رائے شماری کا وعدہ کیا تھا، لیکن اب بھارت اپنے ان وعدوں سے مکر گیا ہے اور مقبوضہ کشمیر میں 7 لاکھ فوج کے ذریعے نیتے اور غیر مسلح کشمیریوں پر مظالم ڈھا رہا ہے، جس کی ایک چھوٹی سی مثال حال ہی میں گمنام قبروں کا دریافت ہونا ہے۔ بھارت نے اب تک تشدد سے 90,000 سے زائد کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ بھارت کے اس اقدام پر آزاد کشمیر کے صدر سردار محمد یعقوب خان کا کہنا ہے کہ کشمیری بھارت کو فتح نہیں کرنا چاہتے بلکہ اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ دنیا انسانیت کے خلاف ہونے والے ان جرائم کا نوٹس لے۔ اس بات پر دھیان دیا جائے کہ ایسا ظلم جو انسانیت کے ناطے ہو رہا ہے، ہم تو انسانیت کے ناطے بات کرنے چاہتے ہیں انٹرنیشنل دنیا کے ساتھ، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، جس طرف میں سمجھتا ہوں کہ اس سے دنیا کا امن اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب انصاف ہو۔ دنیا جانتی ہے کہ کشمیریوں کی جدوجہد غیر مسلح ہے اور وہ اپنے حق کے لیے پرامن جدوجہد کر رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کے وزیر مال چودھری علی شان کا کہنا ہے کہ اجتماعی قبروں کے انکشاف کے بعد بھارت کا ایک اور مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے آ چکا ہے۔ کشمیر کو اس طرف سے بھی، مقبوضہ کشمیر کی طرف سے بھی اور آزاد کشمیر میں بسنے والے تمام کشمیری لوگوں کی طرف سے یہ اقوام متحدہ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اب اس قدر اس ظلم اور بربریت کی یہ داستانیں جو اب سامنے آئی ہیں، اس کے بعد میرے خیال میں اقوام متحدہ کے پاس کوئی جواز باقی نہیں رہا کہ وہ اس ظلم پہ خاموش رہے۔ چیئرمین کشمیر کمیٹی مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ جب تک مسئلہ کشمیر کا کوئی حل نہیں نکالا جاتا اس وقت تک برصغیر میں امن کا قیام ناممکن ہے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل ان گمنام قبروں کی تحقیقات کرائے۔ بھارت تمام حربے آزمانے کے باوجود کشمیریوں کو ان کے حق خود ارادیت سے دستبردار نہیں کر سکا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ عالمی طاقتیں کشمیریوں کے ساتھ ہونے والے مظالم کو بند کرائیں اور کشمیریوں کو ان کا حق دلائیں۔ کیمرہ مین ناصر ملک کے ساتھ سردار حمید، وقت نیوز، اسلام آباد۔ پاکستان میں آنے والی قدرتی آفات کی تاریخ پر آپ کو دکھائیں گے ریاض جاوید کی اسائنمنٹ، لیکن اس سے پہلے ایک بریک۔ قدرتی آفات کا نازل ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان کی گھڑی ہوتی ہے۔ غفلت میں گھری مخلوق کو جگانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کا امتحان کبھی بے تحاشا بارشوں سے لیتا ہے تو کبھی خشک سالی سے، کبھی زمین کو کانپنے کا حکم دے کر مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو قدرتی آفات یہاں کبھی سیلاب کی شکل میں نازل ہوئیں تو کبھی زلزلے نے سرزمین پاکستان کے کسی حصے کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ آج بھی پاکستانی قوم کو بارشوں کی شکل میں قدرتی آفت کا سامنا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ پاکستانی قوم اور اس کے حکمران اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے رحم کی فریاد کریں۔ پاکستان میں قدرتی آفات کی تاریخ پر نظر ڈالنے کے لیے دیکھتے ہیں ریاض جاوید کی اسائنمنٹ۔ پاکستان کو اب تک 10 بڑی قدرتی آفات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ناقص منصوبہ بندی اور سیاسی انا کے باعث ایک کے بعد دوسری آنے والی آفت پہلے سے بھی زیادہ نقصان کا سبب بنی۔ قیام پاکستان کے بعد پہلی قدرتی آفت سیلاب کی صورت میں نمودار ہوئی اور 1950 میں دریائے راوی میں طغیانی نے لاہور کے علاوہ پنجاب کے درجنوں اضلاع کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ اس سیلاب میں درجنوں ہلاکتوں کے ساتھ ساتھ 9 لاکھ افراد بے گھر بھی ہوئے۔ 12 نومبر 1970 کو مشرقی پاکستان کی حدود میں شدید ترین سمندری طوفان آیا جس میں 5 لاکھ افراد ہلاک اور لا تعداد متاثر ہوئے۔ سیلاب کے بعد ملک کو زلزلے کی صورت میں دوسری بڑی آفت کا سامنا کرنا پڑا اور 28 دسمبر 1974 کو ملک کے شمالی علاقے ہنزا میں 97,000 افراد متاثر ہوئے، جبکہ بڑے پیمانے پر اموات بھی ریکارڈ کی گئیں۔ 1988 میں ملک کو ایک بار پھر بدترین سیلاب کا سامنا رہا اور سینکڑوں ہلاکتوں کے ساتھ ساتھ انتہائی بڑے پیمانے پر انفراسٹرکچر کو بھی نقصان پہنچا۔ 8 اکتوبر 2005 میں قدرت نے ایک بار پھر پاکستانی قوم کو آزمائش میں ڈالا اور 7.6 کی شدت سے آنے والے زلزلے نے تاریخی تباہی پھیلائی۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس زلزلے سے 73,000 افراد ہلاک اور 3 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہوئے۔ 2007 میں ایک اور سمندری طوفان ہمارا امتحان بن کر آیا اور بلوچستان میں 380 جبکہ سندھ میں 250 افراد
अफराद लुकमाए अजल बन गए, जबकि 2 लाख मवेशी भी हलाक हुए। 2010 में सैलाब ने एक बार फिर मुल्क भर में तबाही मचा दी। इस सैलाब के नतीजा में 3000 अफराद हलाक जबकि 2 करोड़ बराह रास्त मुतासर हुए। कुदरती आफात का ये सिलसिला अब भी जारी है और मुल्क के दूसरे बड़े सूबे का बड़ा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। तबाही का ये सिलसिला आवाम के लिए तो कड़ा इम्तहान है, लेकिन सियासतदान अभी भी मुस्तकबिल की मनसूबा बंदी के लिए मिल बैठने के बजाय महज सियासत करते ही दिखाई दे रहे हैं। रियाज जावेद, वक्त न्यूज, लाहौर। अफवाज पाकिस्तान का शुमार दुनिया की उन अफवाज में किया जाता है जो इंतहाई पेशा वराना महारत की हामिल हैं। हमारे सियासी निज़ाम में पाई जाने वाली खराबियों ने गो के इस इदारे को कुछ मुतासिर तो किया, मगर अपने नज़्मो ज़ब्त के बायस फौज एक बार फिर पाकिस्तानी अवाम की नज़रों में मकबूल और दुश्मनों पर अपनी धाक बिठा चुकी है। एक फौजी का अपने वतन की आन पर अपनी जान कुर्बान कर देना उसकी आरज़ू भी होती है और ख्वाब भी। जंग के ज़माने में सरहदों की हिफाजत करना और अमन के दिनों में मुश्किलात से दो चार अवाम की मदद करना पाक फौज का फ़र्ज है। अपने फ़राइज़ की अदायगी में मसरूफ़ पाक फौज की इमदादी सरगर्मियों पर देखते हैं अब्दुल हकीम मोहम्मद की असाइनमेंट। पाक फौज मुल्क के खुदादात के सरहदात की हिफाजत के लिए जहां अपनी सलाहियतें बरूईकार लाती हैं, वहां मुल्क के अंदर दहशत गर्दी का मुकाबला करने के लिए भी बेतहाशा कुर्बानियां देती आ रही हैं। अस्करी पसंदों के साथ न सिर्फ लड़ाई इनके जिम्मे है, बल्कि मुख्तलिफ इलाकों से फौजी ऑपरेशन के जरिए मुतासिरीन की बहाली के लिए भी पेश रहे हैं। और अगज़ई कुरम और मोमंदी एजेंसी के 7000 खानदानों में 6 करोड़ रुपए की लागत से ग़िज़ाई अजनास मुतासिरीन में तकसीम किए जा चुके हैं। मोमंदी एजेंसी की तहसील अंबार हद एरिया के मुकाम पर 1000 खानदानों में अशियाई जरूरिया की तकसीम पाक फौज की जानिब से मुतासिरीन की बहाली के सिलसिले की एक कड़ी है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक यहाँ पे IDPs के अंदर नॉन फूड आइटम्स तकसीम कर रहे हैं। ये आइटम्स गुजरांवाला, लाहौर और मुल्तान कोर ने इकट्ठे किए हैं। अभी तक 7000 पैकेजेस जो हैं वो मोहम्मद, कुरम और औरकज़ई एजेंसी में तकसीम किए जा चुके हैं और आज हम मोहम्मद की तहसील अंबार के अंदर मज़ीद 1000 पैकेजेस तकसीम करेंगे। इन पैकेजेस के अंदर बिस्तरे, तौलिए, टॉयलेटरीज़, कुकिंग का सामान शामिल है और ये उन लोगों को दिया जा रहा है जो बेसिकली ऑपरेशन के दौरान IDP स्टेटस पे गए थे। लाहौर, गुजरांवाला और मुल्तान कोर की जानिब से कबाइली मुतासिरीन के लिए भेजे गए इन कीमती सामान पर लोगों ने पाकिस्तान आर्मी के जवानों का शुक्रिया अदा किया और मुतासिरीन ने इलाके को भी पुरअमन करार दिया है। गवर्नमेंट आ गया इधर, हम लोग बहुत खुश हो गया। अभी अमन आ गया, पहले अमन इतना नहीं था, अभी तो बहुत अमन है। जो सामान है ये गरीब लोग को दिया, ये मैं अपने जान पर नहीं चली, जो मेरे साथ जो गरीब लोग हैं मैं उसको देते, थोड़ा मैं भी थोड़ा और भी, उस किसी के साथ गरीब है मेरे साथ जो है उसको बस देता था। पाकिस्तान आर्मी की जानिब से कबाइल के गयूर अवाम की दादरसी करना अपनी जगह, ताहम ये सब की जिम्मेदारी बनती है कि उन तमाम शरपसंद अनासर का मुकाबला किया जाए जो मुल्क की सालमियत के लिए खतरा है। कैमरामैन तनवीर इकबाल के साथ अब्दुल हकीम मोहम्मद, वक्त न्यूज़, अंबार, मोमंदी एजेंसी। तालिब इल्म कौम का मुस्तकबिल होते हैं। तालिब इल्मों को तालीमी मैदान में हर किस्म की सहूलियात फ्राहम करने के साथ साथ उनकी नुमायां कारकर्दगी पर उन्हें सपोर्ट करना हुकूमत की जिम्मेदारियों में शामिल है। तालीमी मैदान में नुमायां कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा और तालिबात की हौसला अफजाई करने और उन्हें खराज तहसीन पेश करने के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से पिछले 3 सालों से बहुत से इक़दामात किए गए हैं। नक़द इनामात, वज़ाइफ, मुस्तहिक तलबा और तालिबात को मुफ्त तालीम फ्राहम करने के साथ साथ पोजीशन होल्डर तलबा और तालिबात को हुकूमती खर्चे पर मरी में हुकूमती मेहमान बनाना शामिल है। पोजीशन होल्डर तलबा और तालिबात के मरी में हुकूमती मेहमान बनाए जाने पर देखते हैं इम्तियाज़ुल हक की असाइनमेंट। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से मुल्क भर खसूसन पंजाब के होनहार तलबा और तालिबात की हौसला अफजाई के लिए उनको स्टेट गेस्ट की हैसियत से मेरिट में ठहराए जाने और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किए जाने का सिलसिला गुज़श्ता 3 साल से जारी है। इस दौरान यहाँ पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इम्तहानात में नुमायां पोजीशन हासिल करने वाले लातादाद वफूद को गवर्नमेंट हाउस और पंजाब हाउस में ठहराया गया है और अब ये सिलसिला एक रवायती तकरीब का रंग इख्तियार करता जा रहा है। हल्के कोसार मरी में स्टेट गेस्ट की हैसियत से इन तलबा और तालिबात की आमद पर इनकी खुशी दीदनी होती है। इतना ज्यादा प्रोटोकॉल दिया गया है, ये ऐसे प्रोटोकॉल किसी को भी नहीं दिया जाता। हमें ये ECM के अपने हाउस में ठहराया गया है।
पोजीशन होल्डर्स को जो इतना उन्होंने प्रोटोकॉल दिया है, उनके लिए ये ट्रिप मरी का अरेंज किया, इसके अलावा जो प्राइज़ दिए हैं ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हौसले में उनका हौसला बढ़ाएगा और उनको और ज़्यादा उनके दिल में ये ख्वाहिश पैदा होगी कि वो और ज़्यादा आगे आएँ और ज़्यादा मेहनत करें और इसी तरह अपनी अपनी फील्ड में नुमायाँ कारकर्दगी अदा करें। भरपूर प्रोटोकॉल के साथ मरी में अपने 3 रोजा कयाम के दौरान इन तलबा को पत्रियाटा, भूरबन और दूसरे तफरी मुकामात की सैर कराई जाती है और बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल करने वाले तलबा वजीर आला के खसूसी कमरे में कयाम करते हैं। इन तलबा और तलबात की ये ख्वाहिश होती है कि पंजाब की तरह दूसरे सूबे भी इस खूबसूरत रवायत की तकलीद करें ताकि मुस्तकबिल के मेहमारों की हौसला अफजाई हो। हमें वो स्टेटस दिया जा रहा है तो इससे हमारी बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट हो रही है। इसके अलावा ये बात है कि जिस तरह कि यहाँ हमारे पंजाब में ऐसा होता है, बाकी सूबों को भी इस कि दे शुड बी कंसर्न अबाउट इट, उनको भी अपने स्टूडेंट्स को इस तरह प्रमोट करना चाहिए और उनको भी इंकरेज करना चाहिए ताकि फर्दर इन द फ्यूचर वो भी उनके भी स्टूडेंट्स मतलब फिर से पोजीशन लें और इसको बरकरार रखें। चीफ मिनिस्टर पंजाब की तरह दूसरे जो बोर्ड हैं वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी इसी तरह का करें ताकि बच्चों की हौसला अफजाई हो, इनकरेजमेंट हो ताकि वो आइंदा भी पोजीशन लेने की कोशिश करें। पोजीशन होल्डर्स बच्चे हैं उनके लिए ये बेसिकली पंजाब हाउस मरी में उन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है और जो भी पोजीशन होल्डर्स डिफरेंट बोर्ड्स के, पंजाब एजुकेशन बोर्ड्स के होते हैं वो यहाँ पे आके स्टे करते हैं, उनको चीफ मिनिस्टर का प्रोटोकॉल मिलता है। फरोग़ तालीम के लिए वज़ीर आला ने पंजाब हाउस के एक अहम ब्लॉक को तलबा के लिए वक्फ कर दिया है। वो उन बच्चों के लिए मैंने वक्फ किया है जो पंजाब भर में आला तरीन वो जो पोजीशन हासिल करते हैं और बाकी सूबों के लिए, और ये पंजाब हाउस उन बच्चों के लिए होगा जो अपने जिलों में, अपनी तहसीलों में एक्सेल करेंगे और अच्छे नंबर हासिल करेंगे। यहाँ पर हिस्टोरियंस भी आएंगे, यहाँ पर साइंटिस्ट भी आएंगे, यहाँ पर तारीख़ पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स भी आएंगे, लॉ मेकर्स भी आएंगे, बड़े बड़े काबिल जो इस्लामिक फिलोसफर वो भी आएंगे और यहाँ पर बच्चों को आके लेक्चर देंगे। मुस्तकबिल के इस असासे की हर सतह पर पजीराई में ही वतन अजीज की बका है। वज़ीर आला पंजाब की जानब से होनहार तलबा के एजाज़ में 2008 से गार्ड ऑफ ऑनर का एहतमाम किया जा रहा है जो खुश आइंद अक़दाम है। ज़रूरत इस अमर की है कि दूसरे सूबे भी इसकी तकलीद करें ताकि मुस्तकबिल के इन मामारों की हौसला अफजाई हो सके। प्रोग्राम असाइनमेंट के लिए इम्तियाजुल हक, वक्त न्यूज़, मरी। सरकारी इमलाक कौम की मलकियत होती हैं और उनकी हिफाजत करना हम सब का फ़र्ज है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में सरकारी इमलाक की हालत यतीम इमारात जैसी होती है जिनका कोई वाली वारिस नहीं होता। औलिया इकराम के शहर मुल्तान में चंद साल कबल जनरल बस स्टैंड पर खतीर रकम से बेहतरीन सहूलियात से आरास्ता एसी टर्मिनल तामीर किया गया, मगर ये खूबसूरत टर्मिनल अपनी तामीर के चंद साल बाद ही इंतजामिया की तवज्जो से महरूम हो गया। बस टर्मिनल की सड़कें टूट फूट का शिकार हो गईं, जबकि एसी टर्मिनल के बाहर ट्रैफिक के मसाइल भी बदतरीन सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। मुल्तान बस टर्मिनल की हालत जार पर देखते हैं मुल्तान से हाफिज सरफराज अली की असाइनमेंट। मुल्तान में करोड़ों रुपए की लागत से तामीर किया जाने वाला न्यू एसी टर्मिनल हुकूमती अदम तवज्जो और गफलत के बायस टूट फूट का शिकार हो रहा है। अगर इंतजाम ने इस तरह तवज्जो ना दी तो बहुत जल्द ये टर्मिनल खंडरात का मंजर पेश करने लगेगा। जनरल बस स्टैंड पर तामीर किए जाने वाले एसी टर्मिनल पर 50 करोड़ रुपए से ज़ायद लागत आई, मगर नाक़िस हिकमत अमली के बायस ना तो टर्मिनल को दाखिली और ना ही खारजी रास्ता फराहम किया गया। टर्मिनल का इस्तेमाल होने वाला वाहिद रास्ता एसी, नॉन एसी व दीगर बसों के अलावा वैगने, ट्रक, हैवी ट्रैफिक समेत तमाम ट्रांसपोर्ट की गुजरगाह है। करोड़ों रुपए की मालियत से तैयार किया हुआ एसी टर्मिनल जो है वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा। उसकी असल वजह यह है कि उसके दाखिली और खारजी रास्ते जो हैं वो टूट फूट का शिकार हैं। उसमें जो गाड़ियां हैं उनका दाखिला ही बहुत मुश्किल है। टर्मिनल की सड़कें भी जगह जगह से टूटी हुई हैं, जबकि रही सही कसर आवाम ने टर्मिनल की दीवार को तोड़कर पूरी कर दी है, जो आम लोगों की आमदोरफ्त बन चुकी है। टर्मिनल से रोज़ाना पाकिस्तान के तमाम शहरों को बसें जाती हैं और ये बसें टर्मिनल फ़ीस की मद में करोड़ों रुपए सालाना का रेवेन्यू सरकारी ख़जाने में जमा कराती हैं, मगर ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि हुकूमत सहूलतों की फराहमी में मायूस कर रही है, जबकि सरकारी इमलाक को भी नुकसान पहुँच रहा है। ट्रांसपोर्टर अपना टर्मिनल में लाखों रुपये रेवेन्यू देते हैं रोज़मर्रा की शरह पर, मगर आज तक कोई भी ट्रांसपोर्ट मसाइल हल नहीं हुए। ना पर टर्मिनल में पानी पीने का पानी है और ना ही कोई सफाई का इंतज़ाम है। हालात ये हैं कि टर्मिनल में जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं,
टर्मिनल में ना खारजी रास्ता है ना दाखिली रास्ता है, इस वजह लंबी लाइन लग जाती हैं, जिस वजह ट्रांसपोर्ट बहुत परेशानी के मसाइल का सामना करना पड़ा ट्रांसपोर्टरों को। टर्मिनल के बाहर कोई ट्रैफिक प्लान ना होने पर अक्सर व बेशतर टर्मिनल के बाहर ट्रैफिक जाम रहती है। वज़ीर आज़म को चाहिए कि टर्मिनल की देखभाल और मसाइल के हल के लिए ज़िम्मेदारान को पाबंद करें। चूँकि ट्रांसपोर्टर्स लाखों रुपए माहाना रेवेन्यू अदा करते हैं, इनको रिलीफ फराहम करना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। कैमरामैन साकिब नज़ीर के साथ सरफराज अली, वक्त न्यूज़, मुल्तान। डूम और की गर्दान के बाद अमेरिका की जानिब से अदम एतमाद और इल्ज़ामात की बारिश शुरू। 9/11 के बाद पाकिस्तान के हालात और पाक अमेरिका ताल्लुकात पर दिखाएंगे आपको असाइनमेंट, लेकिन पहले एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। पाक अमेरिका ताल्लुकात की तारीख आधी सदी से भी ज़्यादा पुरानी है। इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी हमें ये नहीं पता कि अमेरिका हमारा दोस्त है या दुश्मन। हुक्मरानों के नज़दीक अमेरिका हमारा दोस्त है, जबकि अवाम में इस दोस्ती को ख़ास पजीराई नहीं मिलती, बल्कि अमेरिका का जो यार है गद्दार है के नारे लगाए जाते हैं। दोस्त वो होता है जो मुसीबत में काम आए, लेकिन तारीख पर अगर नज़र दौड़ाई जाए तो पाकिस्तान पर जब भी मुश्किल वक्त आया, अमेरिका पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि मुसीबत के साथ खड़ा नजर आया। 9/11 के बाद पाक से ज़मीन पर लड़ी जाने वाली अमरीकी मुफादात की जंग और पाकिस्तान पर अमेरिका की बदएतमादी पर देखते हैं अली शेर और इरफान खान की असाइनमेंट्स। 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमलों के फौरी बाद उस वक्त के अमेरिकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने जिस रद्द-ए-अमल का इजहार किया, उससे साफ पता चल गया था कि आइंदा दुनिया में क्या होने वाला है। फिर वही हुआ जिसका खतरा था। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के नाम पर पाकिस्तान में ऐसी रियासती दहशतगर्दी की गई कि इससे न सिर्फ 35,000 पाकिस्तानी जानों से हाथ धो बैठे, मईशत को सरकारी इदादो शुमार के मुताबिक 68 अरब डॉलर के करीब नुकसान पहुंचा, बल्कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के अगवा, रेमंड डेविस की रिहाई, ड्रोन हमलों और एबटाबाद जैसे वाकयात ने पाकिस्तानी मुआशरे को तकसीम करके रख दिया। इन वाकयात के पीछे छुपे असल हकायक से पर्दा विकी लीक्स उठाती रही, जिसमें पाकिस्तानी हुक्मरानों के चेहरे बेनकाब होते रहे। पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने 2 मरतबा अवामी जज्बात की तर्जमानी की और परवेज मुशर्रफ की पॉलिसियों से बरात का इजहार किया, मगर अमल ने दारद। हम कब तक आंखें बंद करके दूसरों की जंग को अपने पर मुसल्लत करके इस दलदल में फंसे रहेंगे? हमें निकलने का रास्ता सोचना चाहिए। अमेरिका निकलने का रास्ता सोच रहा है, हाथ पांव मार रहा है, लेकिन हम दलदल में फंसे चले जा रहे हैं। साबिक सफीर अयाज वजीर कहते हैं कि पाकिस्तानी हुक्मरान ज़हनी तौर पर खुद को अमेरिका और बरतानिया का, जबकि पाकिस्तानी अवाम को अपना गुलाम समझते हैं, इसीलिए वो मगरबी पॉलिसियों पर अमल पैरा रहते हैं। मुझे मार्क टेली के अल्फाज नहीं बोलते। मार्क टेली एक नामी गिरामी BBC का नुमाइंदा था। उसने कहा कि मेरी सजेशन है हिंदुस्तानियों के लिए भी और पाकिस्तानियों के लिए भी कि अगर आप लोग तरक्की करना चाहते हैं तो आप हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी रहें। पार्लियामेंट की मंजूर करदा करारदादों पर अमल दरामद न होने के हवाले से अवामी नेशनल पार्टी अपना अलग मौकफ रखती है। स्ट्रेटेजिकल डेप्थ अफगानिस्तान का हमारा सोच को खत्म नहीं होगा, हमारे जिहाद से कोई दूसरा मुल्क आज़ाद करवाना नहीं होगा, तो शायद हमें फिर थोड़ा सा सुकून मिल जाए। अगर हमारे यही पॉलिसी चलती रही तो अल्लाह न करे कि हमारा मुल्क कब तक ये बर्दाश्त करे। मशीर पार्लिमानी उमूर इजहार अमरोही का कहना है कि ताकतवर अपनी मर्जी से अमल करता रहता है, जबकि कमजोर करारदादे पास करते रहते हैं। पार्लियामेंट ने अपना जो हक था वो अदा कर दिया, लेकिन उस पर अमल दरामद कराने वाले वो लोग हैं कि जो शायद हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। पाकिस्तान की मौजूदा खारजा पॉलिसी की हिमायत और मुखालफत करने वाले दोनों तरह के माहरीन का कहना है कि 10 साल बाद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने क्या खोया और क्या पाया की बैलेंस शीट तैयार करके आइंदा की पॉलिसी तैयार करनी चाहिए। 9/11 के 10 साल मुकम्मल होने पर माहरीन का कहना है कि मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान और मुआशरे की तकसीम दर तकसीम के बाद अब पार्लियामेंट की मुतफिका करारदादों की रोशनी में कौमी पॉलिसी इख्तियार कर ही लेनी चाहिए। कैमरामैन नौशाद अब्बासी के साथ अली शेर, वक्त न्यूज, इस्लामाबाद। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात हमेशा उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं। चाहे भारत के खिलाफ हिमायत दरकार हो या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में माली इमदाद, अमेरिका ने हमेशा नजरिया जरूरत के तहत ही हाथ मिलाया। अमेरिका ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की जानिब से दी जाने वाली कुर्बानियों को हमेशा शक की निगाह से देखा है।
अमरीकी नायब सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान पर इल्जाम आयद किया है कि पाकिस्तान अलकायदा के खिलाफ दुरुस्त इकदाम नहीं उठा रहा। इसी वजह से अफगानिस्तान में कामयाबी मुमकिन नहीं हो रही। दिफाई तजियाकार मारिया सुल्तान का कहना है कि अलकायदा के खिलाफ जंग पाकिस्तान की नहीं बल्कि खुद अमरीका की है। हम इस आलमी दहशत गर्दी के अंदर अमरीका के मकासद के साथ हैं, लेकिन इसकी जो बुनियादी जो जद्दोजहद है, ये बुनियादी जो लीड है, वो तो अमरीका को लेनी पड़ेगी। पाकिस्तान को ज़रूरत इस बात की कि वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी है उसको समझें और पाकिस्तान को एस्केप कोड के लिए इस्तेमाल ना करें। अपने दौरे इक़्तिदार में अमरीकियों को ड्रोन हमलों की इजाजत देने वाली जमात मुस्लिम लीग काफ के सेनेटर तारिक अजीम का कहना है कि अमरीका की हिमायत करते करते ये जंग हमारे घरों तक पहुँच चुकी है, इसलिए अब वक्त आ गया है कि अमरीकी सफीर को दफ्तर खारजा तलब करके बाज़पुर्स करें। कहा जाता है कि जी हम जो है नाकाबिल एतमाद हैं, तो इसके सिलसिले में हमें खुद चाहिए, हमारी हुकूमत को, कि इसका बिल्कुल एक सही और सख्त जवाब देना चाहिए और उसे कहना चाहिए कि वो देखें, आपको जो हमने सपोर्ट की है शायद ही किसी दूसरे मुल्क ने इतनी सपोर्ट की हो। अपनी मजबूरियां भी हमने सामने रखते हुए अफगानिस्तान के हवाले से, तालिबान के हवाले से, लोकल जोग्राफियाई जो हमारी पोजीशन है उसके हवाले से, लेकिन उनका जो है वो बावजूद इसके एक ही मंत्रा रहा है कि डू मोर या यू आर नॉट डूइंग इनफ। अमरीका ने 2014 में अफगानिस्तान से अफवाज के मुकम्मल इनखिला का ऐलान किया है, लेकिन माहिरीन के मुताबिक अफगान आर्मी के सालाना अखराजात की अदायगी, अमरीकी एयरबेसेज और CIA का काबुल में पड़ाव एक लंबे अरसे तक रहेगा। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तानी सरहदों की मुतअद्दिद बार खिलाफ वर्जियों के बाद अमरीकी ओहदेदारों के ऐसे बयानात दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी कुर्बानियों की नफी हैं, जिसके बाद इस्लामाबाद में अमरीकी पॉलिसियों के हामी सियासतदानों के लिए उनकी हिमायत जारी रखना मुश्किल हो गया है। कैमरामैन अकमल सत्ती के साथ इरफान खान, वक्त न्यूज, इस्लामाबाद। मुआशरा कुफ्र पर तो कायम रह सकता है लेकिन नाइंसाफी पर नहीं। लेकिन जरा हम अपने गिरेबान में झांकें और अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो हर तरफ नाइंसाफी का राज नजर आता है। इन हालात में आखिर कब तक हमारा मुआशरा कायम रह सकता है? हमारे मुआशरे का एक अलमिया ये है कि यहाँ अवाम से होने वाली नाइंसाफी की जिम्मेदार हुकूमती इदारों के साथ साथ अदालतें भी हैं। इंसाफ में ताखीर इंसाफ को कत्ल करने के बराबर होती है। इंसाफ में ऐसी ही ताखीर का शिकार एक साइल सुप्रीम कोर्ट के सामने फट पड़ा। इस हवाले से देखते हैं माजिद जलाल की असाइनमेंट। मेरे पास कोई मिसाल नहीं है, मेरे पास कोई मिसाल नहीं है। मैं सिर्फ 3 इदार पेंशन ले रहा हूँ। मेरे अहसासों पर कब्जा जो कि आई के रिकॉर्ड मेरे पास है, मेरे पास है। जिस मुआशरे में इंसाफ की फ्राहमी में ताखीर होगी या रुपयों के अवज बिकेगा, वहाँ इकबाल जैसे उम्र रसीदा लोग यूं ही निजाम अदल के दरबारों में मायूस होकर चीखते चिल्लाते रहेंगे। पूरी कौम के साथ है, पूरी कौम के साथ बेइंसाफी है। क्यों? इकबाल हुसैन रावलपिंडी की तहसील कलर सईदा का रिहायशी है, जिसकी जायदाद पर इलाके के बाअसर अफराद ने कब्जा कर रखा है। इसने इंसाफ के लिए मातहत अदालतों, मुतलका थानों के दरवाजे खटखटाए, मगर करप्शन की कहानियों से माला माल इन इदारों और मातहत अदालतों से मायूस होकर इस उम्र रसीदा शख्स ने भी अदालत उज़्मा की चौखट पर सर रख दिया। मगर जब यहाँ भी इसकी बात सुनी अनसुनी की गई तो इकबाल हुसैन का सब्र दम तोड़ गया। हर जगह पर दिए हैं, हर कोर्ट में दिए हैं, काल की रिकॉर्ड मेरे पास है, कोई इंसाफ नहीं हो रहा है। इकबाल हुसैन की कहानी फिर जहां दरबारे अदल की दरो दीवार ने सुनी, वहीं इसके चीखते चिल्लाते लहजे ने सुप्रीम कोर्ट में आए कई और अफराद को भी इसकी दास्तान सुनने पर मजबूर कर दिया। कानूनी माहिरीन भी इस हकीकत को मानते हैं कि पाकिस्तान की मातहत अदालतों में इंसाफ का हसूल कोई आसान काम नहीं। मैं ये समझता हूँ कि करप्शन लोअर कोर्ट्स पे बहुत ज्यादा है, इसकी दुरुस्ती की जरूरत है ग्रॉस रूट लेवल पे, और मोहतरम चीफ जस्टिस साहब को चाहिए कि इस तरफ भी तवज्जो दें और ये जो करप्शन है ये खत्म की जाए। पुलिस स्टेशन जाओ तो वहाँ रुपया पैसा और रिश्वत का ऐसा बाजार गर्म है कि वहाँ मोतबर और बासर लोगों के मामलात तो हो जाते हैं, गरीब आदमी और आम आदमी का वहाँ पुरसाने हाल कोई नहीं। इकबाल हुसैन सुप्रीम कोर्ट इसी उम्मीद पर पहुंचा था कि इस जैसे सैकड़ों गरीबों की तरह शायद वो भी चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से इंसाफ ले सके, मगर अदालती अमल की पेचीदगियों ने इसे अदालत उज़्मा की सीढ़ियों पर भी चढ़ने का मौका नहीं दिया। मतहत अदालतें और इदारे इंसाफ की फ्राहमी के लिए बुनियादी सतून हैं, जिसमें करप्शन और इंसाफ का गला घोटने वालों का खात्मा ही इकबाल हुसैन और इस जैसे कितने अफराद को इंसाफ की उम्मीद लिए चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के पास आने से रोक सकता है। कैमरामैन काशिफ अब्बासी के साथ माजिद जलाल, वक्त न्यूज, इस्लामाबाद।
پانی کے بغیر زندگی کا تصور بھی مشکل ہے۔ پاکستان میں صاف پانی کا حصول ایک سیریس مسئلہ بن چکا ہے۔ پینے کے صاف پانی کی فراہمی حکومت کی بنیادی ذمہ داری اور عوام کا بنیادی حق ہے، مگر حکومت اس ذمہ داری سے نظریں چرا رہی ہے۔ اس شریف میں پانی کے پائپ بوسیدہ ہو چکے ہیں، زیر زمین پانی میں خطرناک ادوات شامل ہو چکے ہیں، جس کے باعث یہ پانی سنگین بیماریاں پھیلانے کا باعث بن رہا ہے۔ خود شریف کے شہریوں کو درپیش مسائل پر دیکھتے ہیں عبدالغنی لنگا کی اسائنمنٹ۔ پینے کا پانی اللہ تعالیٰ کی ہزار دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک ہے، جسے چرند پرند انسان اور حیوان پیتے ہیں۔ پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے حکومت کی طرف سے کثیر فنڈ سے ٹربائنیں، واٹر فلٹریشن پلانٹس کی تنصیب کے دعوے بھی کیے جا رہے ہیں۔ یہ پانی کہیں اعلیٰ معیار کا، کہیں نہروں سے اور کہیں زیر زمین سنکھیا کی آمیزش ملا انسانی زندگیوں کو میسر ہے۔ گزشتہ دور میں ہر یونین کونسل میں وزیر اعظم پروگرام کے تحت اس کی شفاف فراہمی کے لیے دو فلٹریشن پلانٹ لگانے کے منصوبے کا آغاز بھی ہوا، جو سروے تک محدود رہا، جبکہ صوبائی حکومت کی جانب سے سہولت کی فراہمی کو بعض ارکان صوبائی اسمبلی نے عوام کی بجائے اپنے ڈیروں کی زینت بنا دیا ہے۔ سب تحصیل شریف کے 22 مواضعات ایسے بھی ہیں جہاں زیر زمین کڑوا پانی ہونے کی وجہ سے لوگ دور دراز سے لاتے ہیں، اور کچھ مواضعات میں سنکھیا کی آمیزش خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے، جس سے لوگ گیسٹرو سمیت پیٹ کی بیماریوں میں مبتلا ہو کر ہسپتالوں تک پہنچ رہے ہیں۔ ان مواضعات کے پانی کو ماہرین کی طرف سے انسانی زندگی کے لیے خطرناک قرار دیے جانے کے باوجود مکین متبادل انتظامات نہ ہونے پر یہ زہریلا پانی پینے پر مجبور ہیں، جبکہ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ دریائے ستلج میں کئی سالوں سے پانی کا بہاؤ ختم ہونے پر زیر زمین پانی کی سطح 80 فٹ تک گر چکی ہے، جس سے انسانی زندگی کے لیے مفید نمکیات اور دیگر اجزاء کی کمی سے یہ پینے کے لیے پانی بیماریاں پھیلا رہا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ ان متاثرہ مواضعات میں میٹھے پانی کی فراہمی جلد ممکن بنائے۔ کیمرہ مین عدنان خان کے ساتھ عبدالغنی لنگا، وقت نیوز، اچ شریف۔ پاکستانی عوام کا آخر قصور کیا ہے؟ پاک سرزمین انسانی خون سے کیوں لہو رنگ کی جا رہی ہے؟ روشنی کے شہر کراچی کے عوام سے زندہ رہنے کا حق کیوں چھینا جا رہا ہے؟ زندگی کی روشنی کو موت کے اندھیرے میں کون تبدیل کر رہا ہے؟ کراچی میں ہونے والے خونی فسادات کا جائزہ لینے کے لیے آخرکار سپریم کورٹ نے خود ایکشن لینے کا فیصلہ کیا۔ اس بدامنی کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ کون ہے جو زندہ انسانوں کو اغوا کر کے بوری بند لاشیں پھینک جاتا ہے؟ کون ہے جو قربانی کی کھالیں اور فطرانہ دھونس اور دھمکیوں سے ہتھیاتا ہے؟ کراچی کے حالات پر سپریم کورٹ کے 100 موٹر ایکشن پر ہونے والی اب تک کی سماعت پر دیکھتے ہیں ایس ایم عرفان کی اسائنمنٹ۔ سپریم کورٹ نے کراچی میں ہونے والی قتل و غارت گری اور بدامنی کا خود نوٹس 24 اگست کو لیا تھا، جس کی پہلی سماعت اسلام آباد میں 26 اگست کو جمعے کے روز ہوئی۔ سماعت کے دوران یہ فیصلہ کیا گیا کہ کراچی بدامنی خود نوٹس کی سماعت کراچی میں کی جائے، جس کے بعد سپریم کورٹ کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا، جس میں جسٹس سربت جلال عثمانی، جسٹس انور ظہیر جمالی، جسٹس امیر ہانی مسلم اور جسٹس غلام ربانی شامل تھے۔ خود نوٹس کی سماعت 29 اگست کو شروع ہوئی، جس میں کراچی میں ہونے والی قتل و غارت گری کی رپورٹ اٹارنی جنرل پاکستان مولوی انوار الحق نے پیش کی، جس پر چیف جسٹس نے عدم اعتماد کا اظہار کیا اور حقائق پر مبنی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی۔ 30 اگست کو سرکاری وکیل عبدالحفیظ پیرزادہ نے عدالت میں دلائل دیے، جس میں انہوں نے عدالت کو بتایا کہ کراچی میں غیر ملکیوں کا بہت کردار ہے۔ کراچی میں سری لنکن، برمی اور دیگر ملکوں سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں لوگ موجود ہیں، جس میں ایک برمی باشندہ کونسلر بھی ہے، جس پر چیف جسٹس نے ریمارک دیے تھے کہ بنیادی حقوق کے تحفظ کی ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ اگر حکومت اپنی ذمہ داری نہیں پوری کرے گی تو عدالتیں مداخلت کریں گی۔ اس کے بعد مقدمے کی سماعت 6 ستمبر منگل کے روز ہوئی، جس میں چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے حکم دیا کہ ATC کورٹس کی ججوں کی خالی اسامیوں کو 2 دن میں پورا کیا جائے۔ حکومت اپنے من پسند ججز تعینات کرنا چاہتی ہے، اس لیے اب تک ججز تعینات نہیں کیے گئے۔ 7 ستمبر کو اٹارنی جنرل پاکستان نے ISI کی رپورٹ پیش کی، جس میں بہت سے انکشافات ہوئے۔ 8 ستمبر کو ISI نے چیمبر میں بریفنگ دی اور دل ہلا دینے والی ٹارگٹ کلنگ کی ویڈیو دکھائی۔ 9 ستمبر کو IG سندھ نے عدالت میں اعتراف کیا کہ وہ آزاد نہیں ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، وہ DSP کو بھی معطل نہیں کر سکتے۔ 9 تاریخ کے بعد خود نوٹس کی سماعت 13 ستمبر کو منگل کے روز دوبارہ شروع ہوئی، جس میں عدالت نے سخت برہمی کا اظہار کیا اور ریمارکس دیے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہا جائے۔ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ 14 ستمبر کو چیف جسٹس نے ریمارک دیے کہ اگر ہر جماعت کرمنل سے لا تعلقی کا اعلان کر دے تو کراچی میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ فیصلہ آنے کے بعد حالات بہتر ہو جائیں گے اور حکومت الرٹ ہو جائے گی۔ ہمیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس تحریری آئین موجود ہے۔ 15 ستمبر کو عدالت نے پولیس حکام کو حکم دیا کہ وہ روزانہ کی بنیادوں پر بطخوری اور ٹارگٹ کلنگ کا ریکارڈ عدالت میں جمع کرائے۔ کیمرہ مین جمشید علی کے ساتھ ایس ایم عرفان، وقت نیوز، کراچی۔ راجہ جہانگیر پاکستانی انا ہزارے کرپشن کے خلاف اور فلاحی ریاست کے لیے راجہ جہانگیر اختر کی بھوک ہڑتال پر دیکھیں گے آسیہ انصر کی اسائنمنٹ، لیکن ایک بریک کے بعد۔
पाकिस्तान में करप्शन के वाकयात मामूल बन चुके हैं। आए रोज कोई न कोई करप्शन का ऐसा केस सामने आता है कि अवाम की जुबान से बेसाख्ता निकलता है। अच्छा तो ये भी अलगर्ज इस हमाम में तकरीबन सभी नंगे हैं। मौजूदा हुकूमत में तो पाकिस्तान ने करप्शन के मैदान में रिकॉर्ड तोड़ तरक्की की है। रिश्वतों और कमिश्नों के बगैर शायद ही कोई प्रोजेक्ट आगे बढ़ा हो। करप्शन की लानत के बायस न सिर्फ पूरा मुआशरा मफलूज हो चुका है, बल्कि तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट भी यही मूजी मर्ज है। राजा जहांगीर अख्तर करप्शन के खिलाफ मैदान अमल में कूद चुके हैं। करप्शन के खिलाफ मजबूत कानून साजी और पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाने तक की जाने वाली राजा जहांगीर अख्तर की भूख हड़ताल पर देखते हैं आसिया अंसर की असाइनमेंट। वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। सफेद कुर्ता पजामा में मलबूस, आंखों में करप्शन से खात्मे के अज़्म का ख्वाब सजाए इस्लामाबाद के रिहायशी राजा जहांगीर अख्तर गुज़िश्ता 4 रोज से तादा में मर्ग भूख हड़ताल के इरादे पर मजबूती से डटे हुए हैं। वतन अजीज पाकिस्तान से करप्शन और बदउनवानी के खात्मे के लिए पार्लियामेंट और सियासी क़यादत से राजा जहांगीर अख्तर के सिर्फ 2 ही मुतालबे हैं। जब अन्ना हजारे की तहरीक शुरू हुई तो यहाँ पे एक आवाज उठी कि करप्शन नंबर 1 मसला है। फिर मैंने उसे नंबर 1 पे लाया और मुतालबात जो है सिर्फ 2 कर लिए हैं। एक है कि करप्शन के खिलाफ बिल लाया जाए और इतना मजबूत होना चाहिए कि करप्शन उससे रुक सके, और दूसरे नंबर पर मेरा कहना यह है कि इस मुल्क को सिक्योरिटी स्टेट से फलाई रियासत बनाने का तमाम सियासी जमातें ऐलान करें कि वो इसको फलाई रियासत बनाएंगी। जान की बाजी लगाकर अपने वतन पाकिस्तान को करप्शन से पाक करके जमहूरी रियासत में तब्दील करने का अज़्म लिए पाकिस्तानी अन्ना हजारे राजा जहांगीर अख्तर नौजवान नस्ल से मायूस नहीं। उनका कहना है कि मौजूदा हालात ने नौजवान को मायूस तो कर दिया है, लेकिन यही नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल बदलने की सलाहियत से मामूर हैं। इनफरादी तौर पर वो अपने मामलात हल नहीं कर पाएंगे। इस मुल्क पे कब्जा करें, यानी उठें और ये उनका मुल्क है और इसको जो है एक अपने में से क़यादत निकालें और इस मुल्क भी जो सियासी जमातों के ऊपर अपना एक वो बनाएं। आप सिर्फ नारे लगाने के लिए नहीं या ठप्पे लगाने के लिए। मुख्तलिफ शोबे जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद, खास तौर पर नौजवान नस्ल, पाकिस्तान को फलाही रियासत में तब्दील करने में भारत की तर्ज पर अब पाकिस्तान में भी करप्शन के खात्मे की तहरीक को चलाने के हामी हैं। जो अज़म लेके राजा जहांगीर अख्तर साहब निकले हैं, ये अज़म सिर्फ इनका जाती नहीं है, ये पूरी कौम का अलमिया है और मैं तो ये कहूँगा कि पूरी कौम इनका साथ दे। राजा जहांगीर को यकीन है कि पाकिस्तान को फलाही रियासत में तब्दील करने का ख्वाब सिर्फ उनकी ही आंखों में नहीं सजा, बल्कि पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत इस ख्वाब को हकीकत में बदलते देखना चाहती है। पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ कानून साजी का मुतालबा करने वाले जहांगीर अख्तर का कहना है कि अगर पाकिस्तानी अवाम करप्शन के मामले पर भी इकट्ठा नहीं होती तो मुझे अपने मरने का कोई अफसोस नहीं होगा। कैमरामैन नासिर मलिक के साथ आसिया अंसर, वक्त न्यूज, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद पाकिस्तान का वो वाहिद शहर है जो बाकायदा प्लानिंग से आबाद किया गया है। पाकिस्तान के दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के 2 चेहरे हैं, एक इंतहाई खूबसूरत और साफ सुथरा, जबकि दूसरा उतना ही बदनुमा और बुनियादी ज़रूरियात और सहूलियात से महरूम। बड़े बड़े ऐवानों के इर्द गिर्द मौजूद कच्ची बस्तियाँ सेहत और सफाई की सहूलियात से महरूम होने के साथ साथ शहर के अमन व अमान के लिए किसी आतिशफिशां से कम नहीं। बिला तरतीब और बेहंगम शक्ल में कायम कच्ची आबादियों में रिहाइश पजीर अफराद का CDA के पास कोई मुनासिब रिकॉर्ड नहीं। इस्लामाबाद की कच्ची आबादी पर देखते हैं सरदार हमीद की असाइनमेंट। इस्लामाबाद को दारुल हुकूमत होने की वजह से इंतहाई हसास समझा जाता है, लेकिन कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की गफलत के बायस इस्लामाबाद में कच्ची आबादियों में बेपनाह इजाफा हो गया है। ये आबादियां न सिर्फ सिक्योरिटी के लिए खतरा बनती जा रही हैं, बल्कि ये मुनशियात को फैलाने का जरिया भी बन चुकी हैं। शराब, हेरोइन और चर्स भी इन आबादियों में पुलिस की मिली भगत से फरोख्त हो रही है। पुलिस का जितना छोटा अमला है ना, सारा काम ये कराते हैं और यहाँ हेरोइन, चर्स, शराब ये खुली यहाँ पे कच्ची आबादियों में बिक रही है और ये सारे पुलिस का छोटा अमला कराता है। आला अफसरान जो है ना सारे खत्म करना चाहते हैं, छोटे अफसरान आगे बात नहीं जाने देते और खुला मेरा अपना बेटा जो है ना मरने वाला हो रहा है, आप जाके देख सकते हैं। इधर हमें कच्ची आबादी को साफ बदनाम करता है। कच्ची आबादी को ऐसे काम नहीं होते, कोई होगा बंदा उनका साथी होगा, इधर भी बेचता होगा, लेते होंगे, मंत्री भी लेते होंगे, जेडे छोड़ देते जल्दी छोड़ देते हैं।
डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का कहना है कि इन कच्ची आबादियों को रोकने का इख्तियार CDA के पास है, ताहम हम सिक्योरिटी के हवाले से इन आबादियों पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि जहां CDA को पुलिस की जरूरत महसूस होती है, हम इनको पूरी मदद करते हैं। CDA की जो कंसर्न डायरेक्टरेट है उनके साथ राब्ता है, जब भी उन्हें किसी मदद की जरूरत होगी हम हाजिर हैं, विल प्रोवाइड देम सपोर्ट। अपने एंड पे जो हम कर सकते हैं वो ये है कि पीरियोडिक वहाँ चेकिंग करवा रहे हैं। जहाँ तक कच्ची आबादियों का ताल्लुक है, कोई इलीगल मकान बना के रह रहा हो, वो जो भी अथॉरिटी उस पर एक्शन लेना चाहेगी, हम उन्हें पुलिस और मजिस्ट्रेटल का वो प्रोवाइड करें। पुलिस हुक्काम का मानना है कि ये कच्ची आबादियां सिक्योरिटी के लिए खतरा हैं, ताहम इनको खत्म करने और मुनज़्ज़म करने की जिम्मेदारी इख्तिताम को पहुंचा। इस प्रोग्राम के बारे में आपकी क्या राय है, और अगर आप अपना कोई मसला अरबाब इख्तियार तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारा प्रोग्राम हाजिर है। अपनी आरा और मसाइल से हमें जरूर आगाह कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है asain@waqtnews.tv। इसी के साथ अपने मेजबान इमरान सनाउल्लाह को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।